नो मैम। Okay, so today we'll start with the further topics, that is your management of cash and receivables. Now cash, as we have done, we've been doing from the first topics itself, it is very very important for our business, right? पहले सबसे पहले हमने किया, हमने from where are we supposed to get the cash from, we've done the sources of cash, हमने ये किया कि how are we supposed to distribute the cash, हम जिससे debt ले रहे हैं, हम जिससे cash raise कर रहे हैं, उनको आगे repay कैसे करना है, right? From where all have we to allocate our cash, right? हमने को किस इन्वेस्टमेंट्स को चूज करना है, हाउ डू वी नो दैट दे आर प्रॉफिटेबल, हमें उनसे पे बैक कब तक आ रहा है, हमने अपना डे टू डे वर्किंग कैसे निकालनी है कैश की, राइट? सो कैश, एज वी हैव बीन स्टडीइंग, now you all are aware, even you were aware earlier also, not only for business but also in our daily life, it is very very important. You need to have that liquid cash with you, right? So that cash that you have, you need to be very very aware of how to use that particular cash and how to keep that cash in hand with you, right? Because to do any simple activity you need cash in hand with you, right? So cash is one of the current assets of your business, right? It is needed at all times, right? So a business should have a running or a sufficient amount of cash with itself so that it can meet its day to day or it can meet its obligations, right? कोई shortage हो जाए, it is going to hamper the operations, it is going to be unproductive for the business. Over excesses of cash also is harmful, under is also harmful. It is because over is unproductive, it is not being used, ऐसे idle पड़ा है, under है तो your business operations will be hampered. So like any fixed assets, जैसे fixed asset हमारे पास मशीनरी है, प्लांट है, ठीक है, करंट एसेट्स में अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, दे आर इंक्रीजिंग और अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, कैश इन हैंड कुछ नहीं कर रहा, इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग, बट उसकी मैनेजमेंट इस तरीके से करनी है कि बाकी सारी चीजें हम मैनेज कर पाए, राइट? कैश इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ मनी फॉर द बिजनेस, ठीक है, इट इज नॉट ओनली टू बी केप्ट इन द बैंक्स बट ऑल्सो it needed for obtaining your assets, it is needed to invest in some securities, it is needed to being converted into some profitable investments. So the degree of freedom, आप जितना cash को use कर सकते हो, कितना आपको रखना है, it all depends upon how you're using it, how you're managing it, right? So your cash is either in, अगर आप manufacturing goods की बात करो, productive services की बात करो, हर जगह cash चाहिए, right? अब now cash is not only cash in hand, it is also cash in bank. सो टोटल कैश इन हैंड हम क्या समझते हैं अपने पास, बैंक में कितना है और इन हैंड कितना, लो, तो दैट इज योर कैश, टोटल कैश, राइट? सो अब फर्म को किस किस चीज के लिए कैश चाहिए, व्हाट इज द मोटिव ऑफ keeping cash with us? There are three basic motives. First is your transaction motive, third is your precautionary motive, sorry, second is your precautionary motive, and third is your speculative motive. ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब ट्रांजैक्शंस करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए, कैश इज नीडेड टू मेक परचेजेस, टू मीट योर डेली एक्सपेंसेस, टू गिव डिविडेंड्स, राइट? सो कैश की नीड्स हैं, दे आर अराइजिंग बिकॉज देयर शुड बी कंप्लीट और देयर नीड्स टू बी अ कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द कैश रिसीप्ट्स एंड द कैश पेमेंट्स, ठीक है? अगर कभी हमारे कैश रिसीप्ट ज्यादा हो कैश पेमेंट से, या कैश पेमेंट्स हमारी ज्यादा हो कैश रिसीप्ट से, तो उसके लिए हमें उनको इक्वलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें कैश चाहिए, राइट?
सो ट्रांजैक्शन नीड्स ऑफ कैश हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम पहले से ही उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेड पेमेंट्स हमारी नियर फ्यूचर में कितनी होनी चाहिए, कितनी होंगी, वो सब हमने चेक करना है, ठीक है। सो फ्यूचर इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड, बट यस आप एग्जैक्टली नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। सो आप अपनी कैश कितनी आपने पेमेंट्स करनी है, आपको पता है हमने कितनी बाइंग करी है, आप उसके अकॉर्डिंगली आपने, या हमने फ्यूचर में कितनी बाइंग हमें नेसेसरी है, आप इतने हर रोज आप काम कर रहे हो, यूर रनिंग योर डे टू डे ऑपरेशन, आपको पता है आपको डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए कितना कैश चाहिए, डेली आपको बाइंग एंड सेलिंग के लिए कितना कैश आपको रखना है अपने पास। सो यू नो आपकी डिविडेंड पॉलिसी बनी हुई है, आपको पता हमने इतने डिविडेंड्स पे करने हैं, इतना हमने बैंक का इंटरेस्ट पे करना है या किसी चीज का डिबेंचर का इंटरेस्ट में, सो यू ऑल आर अवेयर, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हो, कोई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आ जाती तो उसके लिए मैंने इतना कैश रखा, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन मोटिव इज वन मोटिव। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इज वो ट्रांजैक्शन के लिए था, सेकेंड इज ए प्रिकॉशनरी मोटिव, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, वेदर सडन चेंज हो जाए, ठीक है, जहां लोग सर्दी गर्मी के कपड़े डाल रहे थे अब वापस दे आर कमिंग बैक टू विंटर क्लोथ्स, हाउ, बिकॉज द वेदर हैज मेड सडन चेंजेस, suddenly there is a war situation in the country, suddenly there is a lockdown in the country, suddenly there are certain situations, कोई uncertainty आ गई, कोई natural calamity आ गई, उसके लिए आपको कैश, suddenly there are some resources which have been not available, ठीक है, पहले कोई चीज आपको सब्सिडी में मिलती थी, पहले कोई चीज इजीली मिल जाती है, अब उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, तो यू हैव टू स्विच टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, उसके लिए आपको you need extra cash, so all these are your precautionary motives, ठीक है। then is your speculative motives, speculative motives are कि आपको फ्यूचर में किसी ऐसी हमने इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे डालने जो हमें प्रॉफिटेबल हो, वी हैव टू सर्च फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जब भी कभी आए, ये ना जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए वी कम टू नो कि यस दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वी शुड इन्वेस्ट इन दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बट हमारे पास पैसे ना हो, राइट, इस टाइम पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड मनी विद आवरसेल्व्स, दैट इज अ स्पेक्युलेटिव मोटिव। सो द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ फर्म ये नहीं है कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस करे, ठीक है, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शंस करे जिसमें फर्म को फायदा हो, कि फ्यूचर में कभी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है, सम टाइम समबडी इज गिविंग यू अ वेरी गुड वैल्यू फॉर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उस टाइम के लिए आपको प्रोडक्शन लेवल अगर आपको इंक्रीज करना पड़ गया तो उस टाइम के लिए यू नीड एक्स्ट्रा कैश विद यू, राइट, सो दैट इज अ स्पेक्युलेटिव मोटिव कि हो सकता है हमें बहुत अच्छी डील मिल जाए, हो सकता है ये हो जाए, सो ऑल दोस आर योर स्पेक्युलेशंस, सो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, क्लियर, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव। अब आ जाता है कैश मैनेजमेंट, ठीक है, पहले तो था कैश, व्हाई इज इट नेसेसरी, राइट, नाउ इज योर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज करंट एसेट्स के अंदर हम देखते हैं सबसे हमारा मेजर हम पार्ट हमारा क्या होता है, कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, क्योंकि बिजनेस के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए व्हाट डू वी नीड कैश, राइट। अब कैश मैनेजमेंट है, इट इज डीलिंग विद थ्री मेजर थिंग्स, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कैश फ्लोज विद इन द फर्म एंड कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द फर्म, ठीक है, कितना बैलेंस है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, और विद इन द फर्म कितनी उसकी आपस में हर डिपार्टमेंट में कितनी उसकी डीलिंग हो रही है, ठीक है। नाउ कैश प्लानिंग, दैट मीन्स आपकी मैनेजमेंट कैसी हो रही है कैश की, ठीक है ना। सो कैश मैनेजमेंट के पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि हाउ दे आर सपोज टू डील विद द कैश। सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो प्लानिंग के लिए क्या करना है, प्लानिंग वी ऑल आर अवेयर व्हाट प्लानिंग इज, हर चीज को करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, ठीक है, हमने एक फ्यूचर प्रोजेक्शन बनानी है कि हमें फ्यूचर में इतना कैश हमें रिक्वायर्ड होगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए और फ्यूचर एक्टिविटीज को रन करने के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश। देन इनफ्लो हमें कहां से आएगा हमने ये भी डिटर्मिन करना है पहले से, सो दिस इज ऑल योर प्लानिंग। देन इज योर कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग, ठीक है, फोरकास्ट एंड बजटिंग में क्या आ जाएगा कि कितनी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स है उसका हमने कंट्रोल करना है, हमने ओवर परचेजिंग नहीं कर लेनी, ओवर सेलिंग भी नहीं करनी कि हमें आगे जाके गड़बड़ हो जाए हमारे बिजनेस के लिए, हमने सब चीज के लिए, फ्यूचर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सबके लिए अपना कैश मैनेज करके अभी से ही रखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन
फोरकास्ट है हमारे फ्यूचर का, उसका इनटेक एंड आउटले हमें चेक करके रखना है। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है वो आपकी कैश फ्लो की प्रोजेक्शन से पता चल जाए आपको, ठीक है, कि डेली एस्टिमेट्स कितने होते हैं उसको उससे पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर में वो आप डे टू डे आप कर सकते हो, डेली नीड्स के हिसाब से कैश की कितनी नीड्स होंगी दैट यू कैन टेक, ठीक है। दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर बाय कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड ही कैन टेक दैट डिसीजन, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए कैश फोरकास्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज देयर यू नीड टू डू प्रॉपर कैश प्लानिंग, ठीक है। अब एस्टिमेट्स हैं, देर आर 3 इयर्स का, 5 इयर्स का या इवन मोर इयर्स की आपको प्लानिंग करके ऑलरेडी रखनी है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर तभी अच्छा जाएगा व्हेन यू आर प्लानिंग, योर प्लानिंग इज गुड, ठीक है। अब बजटिंग अगर हम बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हमें कौन से मेथड्स यूज करने हैं, वी हैव टू कैलकुलेट योर कैश बजट्स एंड एवरीथिंग, रिसीप्ट्स एंड डिसइंबर्समेंट्स का adjusted net income method. Two methods are receipts and disbursements and second is your adjusted and net income method. Receipts and disbursements में है कि आप यू आर चेकिंग कि आपके कितने रिसीप्ट्स आ रही हैं और कितना आप सेल कर रहे हो, कितनी आपकी सेल हो रही है, यू आर चेकिंग इट, यू आर चेकिंग योर क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म, ठीक है, कि कितना हमें कितनी देर में आ रहा है, ये सब आप चेक करके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से अपना सरप्लस चेक करते हो, अपना डेफिसिट चेक करते हो, कब डेफिसिट होता है कब सरप्लस होता है, सो यू आर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट। देन इज एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, ठीक है। एडजस्टेड नेट इनकम मेथड में हमारे आपके पास सोर्सेज हैं, यू हैव दोज यूजेस अप्रोच, ठीक है। इसके यूजुअली क्या है कि आपका कैश कहाँ से आ रहा है, आपका कैश कितना यूज हो रहा है और आपका बैलेंस कितना बच रहा है, ठीक है। व्हाट आर द 3 थिंग्स, सोर्सेज ऑफ योर कैश, यूजेस ऑफ योर कैश एंड द कैश बैलेंस। सो अगर तो इट इज नॉट बाय डिसाइडिंग कि आपका बोरो कितना, इशूइंग कितनी हो रही है, तो आपकी जैसे नेट इनकम कितनी है यू चेक, डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है आप चेक कर रहे हो, डिविडेंड्स हमारी फर्म की कितनी है ये सब आप चेक कर रहे हो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट क्या है, ठीक है, उसके लिए आपने चेक करना है, उसके अब वर्किंग कैपिटल को आप एस्टिमेट तो कर सकते हो, ठीक है, कि डे टू डे हमारे इतने, बट अगेन आपकी जो रिसीवेबल्स और आपकी इन्वेंट्री कभी भी चेंज हो सकती है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो, राइट। सो बाय यूजिंग दिस मेथड हमारे what can we do, we can control your working capital, we can anticipate your financial requirements, right? So this is your how you're going to manage your cash. अब कैश फ्लोज में आपके 2 चीजें आती हैं, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज को हमने कैसे ज्यादा हमने जल्दी करना, इनफ्लोज आर इफ देयर आर मोर बेटर इनफ्लोज फॉर द कंपनी, सो इट इज बेटर फॉर द कंपनी, इट इज यूजफुल फॉर द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ को और क्या मिलता है, एक पुश मिलता है इफ देयर इज मोर एंड मोर कैश कमिंग इन। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को पुश करो कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करो, ठीक है। यू पुश देम कि प्रॉपरली उनको इन्फॉर्म करो, मे बी यू गिव देम डिस्काउंट सो दैट दे डू इजिली पेमेंट्स, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चेक करो, ठीक है, कोशिश करो कि वो जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट कर सके। देन सेकेंड इज योर क्विक कन्वर्जन। क्विक कन्वर्जन मतलब आप जितनी जल्दी वो आपको ऑर्डर देंगे, अगर आप उतनी जल्दी उनको डिलीवर भी करोगे, ऑटोमेटिकली योर प्रोसीजर गेट्स योर टाइम गैप ऑफ गेटिंग बैक द मनी, योर टाइम गैप ऑफ दैट साइकिल टू कंप्लीट, राइट। हमने साइकिल किया था लास्ट क्लास में, यू हैव कैश, फिर उसको रॉ मटेरियल लेते हो, फिनिश गुड लेते हो, फिनिश गुड से सेल में और फिर वापस कैश में आता है, वी डिड दैट साइकिल इन द लास्ट क्लास, ठीक है। वो साइकिल जल्दी खत्म कैसे होगा, जब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में होगा, तो अपना काम जल्दी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड अप हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस। देन इज डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शंस। डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शंस मतलब अब यू हैव अ कंपनी हैज अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर उसने वर्क करना है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स जो खुले हैं, ठीक है, उसमें कलेक्टिंग रिसीप्ट्स है हर जगह पर होती हैं, ठीक है। अब नाउ यू हैव एन आइडिया कि मैंने अलग अलग जगह पर अपना, एवरीबडी वांट्स कि मेरी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी खुले, मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स खुले, लेकिन जितना ज्यादा सिस्टम होगा तो इट इज विल बी क्या होगा, आपका सिस्टम अगर आप ग्रोथ कर रहे हो इन द वाइज ऑफ स्टोर्स, तो आपको अपना आगे अथॉरिटी भी आगे जाके यू हैव टू डिसेंट्रलाइज योर सिस्टम, ठीक है। ये नहीं है कि every storekeeper has to call you for everything, you have to follow up, you can follow up, obviously you have to go and check so that everything is running properly, but you have to give certain sort of authority also to the store,
देन इज योर लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम से क्या होता है, आपका मेलिंग सिस्टम जो है, हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम है, कलेक्शन टाइम है, वो सब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इन दिस मेथड फर्म क्या करती है, इट इज सिलेक्टिंग सर्टन कलेक्शन सेंटर्स, अलग अलग प्लेसेस के सेंटर्स को सिलेक्ट करती है। ठीक है, कैसे सिलेक्ट होते हैं, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, कितने उसको रिसीप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस का वो चेक करेंगे। एंड देन फर्म ने क्या करना है, एक पोस्ट बॉक्स हायर करना है, पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, एंड द पार्टीज उन्होंने दे हैव टू गो एंड कलेक्ट द चेक्स फ्रॉम दैट। ठीक है, उसी जगह से कलेक्शन होनी है, उसी जगह पर चेक्स डलने हैं। लोकल बैंक को एक को असिस्ट कर देना है कि जो ये सिस्टम उनका कैरी ऑन करे। ठीक है, बैंक ने जो कलेक्ट करने हैं वो उधर से कलेक्ट करेगी, और जो पर्सन ने कलेक्ट करने, जो कलेक्शन हाउसेस ने कलेक्ट करने वो भी उधर से करेंगे। तो दे आर मेकिंग अ प्रॉपर सिस्टम कि एक जगह पे ही सारा कुछ हो। सो आपके फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इससे कम हो जाएगी। ठीक है, देन इज योर कैश आउटफ्लोज। हमें कैश इनफ्लोज फास्ट करने हैं, कैश आउटफ्लो को स्लो करना है। ठीक है, वहां पर था प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, यहाँ पर है पेइंग ऑन द लास्ट डेट। जो आपको क्रेडिट पॉलिसी की लास्ट डेट आपको मिली हुई है, उस दिन आप उसको पे करो। जैसे अगर 10 डेज हैं तो आप 10th डे पे पेमेंट करो, तो आपका यू विल गेट अ मेजर टाइम पीरियड। अब जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, एवरीबडी ट्राइज टू पे। ऑब्वियसली आपको पता है आपने अभी पे नहीं करना, आपको नेक्स्ट मंथ पे करना। दैट इज वाई दे आर प्रेफरिंग क्रेडिट कार्ड सिस्टम। क्यों प्रेफर होनी चाहिए, इसी वजह से प्रेफर शुरू कि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करनी, हम अगले महीने भी पे कर सकते हैं, राइट। देन पेमेंट्स थ्रू ड्राफ्ट। ठीक है, देयर यू आर गिविंग ड्राफ्ट्स टू द कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ थ्रू दैट पेमेंट क्या हो सके, डिले हो सके, इंस्टेड ऑफ चेक्स। ठीक है, देन आर वो था डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, इसमें सेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स होनी चाहिए, राइट। यू हैव टू गिव थ्रू चेक्स और ड्राफ्ट्स। ठीक है, चेक्स जब इशू होते हैं मेन ऑफिस से, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, और ड्राफ्ट को और भी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो बेनिफिट है कलेक्शन पीरियड, आपके पास कलेक्शन टाइम पीरियड आपके पास ज्यादा आ जाता है। इंटर बैंक ट्रांसफर्स। ठीक है, आप एफिशिएंट कैसे यूज कर सकते हो कैश को इंटर बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू। व्हेन कंपनी हैज मोर देन वन बैंक अकाउंट्स, तो ट्रांसफर ऑफ बैंक्स, और उसमें क्या हो सकता है, एक्सेसिव, यू कैन अवॉइड कि एक बैंक में आप एक्सेसिव कैश रखने से बेटर है कि अलग अलग बैंक में आप अपना अपना अकाउंट हो। देन इज मेकिंग यूज ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बैलेंस, जितना कंपनी में दिख रहा है, और आपकी पासबुक में दिख रहा है, दैट इज योर फ्लोट। आप कर रहे हैं, हमने आप व्हेन वी प्रिपेयर योर अकाउंट्स, आप दोनों के बैलेंसेस को मेजर करते हो और चेक करते हो, इफ देयर इज एनी पॉसिबल डिफरेंस, हम वो करेक्शन करते हैं। आप अकाउंट्स में आपका एक चैप्टर में आप ये सब क्लियर करते हैं। वो जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज योर फ्लोट। ठीक है, अब पार्टी है जहां पर चेक्स आप इशू कर रहे हो एंड दे आर नॉट प्रेजेंट, वहां पेमेंट क्या हो रही है, जितनी जल्दी हो सकती है आप पेमेंट कर सकते हो। तो जब तक आपके चेक्स बैंक के पास नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली व्हाई आर दे गोइंग टू शो इट इन द पासबुक, राइट। तो ये डिफरेंस का फायदा उठा सकते हैं टू कीप योर कैश बैलेंस हायर। ठीक है, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू स्लो डाउन योर कैश आउटफ्लो। देन इज, वन सेकेंड, just a moment.
नाउ अ कंपनी हैज टू डिटरमिन कि हमें कितना मिनिमम एक कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करके रखना है, राइट? तो हाउ कैन अ कंपनी डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू प्रिपेयर अ कैश बजट, ठीक है? बजट प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट इज दे हैव टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट मॉडल्स। कैश बजट कैसे एस्टिमेट होता है? बाय एस्टिमेटिंग योर कैश रिसीप्ट्स एंड योर कैश पेमेंट्स, ठीक है? फ्यूचर पीरियड के लिए हम कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए इतना बेसिक है हमारे पास, हम कैश बजट पिन पॉइंट करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली अपना सारा का सारा बजट प्लान करेंगे, ठीक है? एक्सेस कैश होगा उसके अरेंजमेंट्स करेंगे, और अगर कम होगा तो हम उसके लिए नेसेसरी चेंजेस लेके आएंगे सो दैट वी कैन एंटिसिपेट अ फ्यूचर डिमांड्स, ठीक है? कैश कलेक्शंस है, सेल्स की, बिज रिसीवेबल है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है? एंड द टोटल अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन ऑल दीज मटेरियल्स वो चेक करेंगे, उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा कैश फोरकास्ट होगा फॉर द फ्यूचर, ठीक है? हाउ मच कैश इज बीइंग ब्रॉट इन द कंपनी, एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट इज योर मिनिमाइजिंग कैश। कैश मैनेजमेंट को मॉडल्स के लिए दे रहा है मल्टीपल मॉडल्स, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल मॉडल है दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? देन इज अ इन्वेंट्री मॉडल, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल है, हमें सिर्फ इसका बेसिक करना है, ठीक है? इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। देयर आर मल्टीपल मॉडल्स फॉर मैनेजिंग योर कैश, ठीक है? तो ऑपरेटिंग साइकिल मॉडल, आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू बी कैरिंग आउट योर बिजनेस, ठीक है? उस मॉडल के थ्रू वी कैन मिनिमाइज वट एवर कैश दैट वी is going out of the company, ठीक है? So we have to use, अब इतने मॉडल्स हैं, you have to use only a particular model so that a company does not get confused, जो मैनेज कर रहे हैं कैश, they do not get confused, ठीक है? So this is your cash balance, ठीक है? मैनेजमेंट ऑफ कैश कैसे करनी है, वो इसके वे में करनी है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स दैट आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आई एम जस्ट you 2-3 questions we of your operating cycle, plus I'll give you some questions so that आपका practical portion भी cover हो जाए साथ पे साथ, you get a through। आपका working capital में practical है, ठीक है? capital budgeting में है। I'm just giving you one question, थोड़ा सा you'll try, then we'll discuss the answers। Just give me a minute, I'll share the questions।
Okay, so question is visible. Yes, ma'am. See here, what is the question? No project is acceptable unless the yield is 10%. Cash inflows of a certain project along with cash outflows are given. Number of years is given to you 0 to 5 years. Cash outflows are 1,50,000 and 30,000. Inflows are 0 year तो obviously नहीं होगा कोई भी inflow. First to 5 years का आपको inflows दिया हुआ है. Salvage value at the end of 5th year is given to rupees 40,000. What do we have to calculate? We calculate the net present value. कैसे करते हैं net present value? कुछ याद है? You have to prepare a table first of all. ठीक है, number of years लिखोगे सबसे पहले. Then you will write down your outflows कितने हो रहे हैं. ठीक है, then you calculate your present value. कितना परसेंट दिया हुआ आपको? डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी दी हुई है? 10% डिस्काउंटेड वैल्यू दी हुई है, राइट? तो वो 10% डिस्काउंटेड वैल्यू के बेस पे आप पीवी निकालोगे. ठीक है, जितनी भी आपका डिस्काउंटेड वैल्यू आती है पीवी की, कैसे निकालते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन रेज टू द पावर एन, राइट? फर्स्ट ईयर की 1 लिखोगे, सेकेंड ईयर की 2 लिखोगे, मतलब रेज टू द पावर 2 करोगे. जितने इनफ्लोज हैं लिखे, साइड पे आपका पीवी लिखा, फिर आपका क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके दोनों को, इसको और डिस्काउंटेड वैल्यू को, राइट? इन द एंड आपकी सैलवेज वैल्यू भी आप लिखोगे, 5th ईयर को 2 टाइम्स यू विल राइट, एंड में आप लिखोगे 40,000 एंड उसका भी अब डिस्काउंटेड वैल्यू विल बी सेम, राइट? कैलकुलेट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू, देन यू फाइंड आउट योर नेट प्रेजेंट वैल्यू. कैसे आएगी आपकी? जो आपका प्रेजेंट वैल्यू उधर आया है माइनस करोगे आप आपके जितना आपका आउटफ्लो हो रहा था टोटल ओवरऑल. ठीक है, उससे आप जब माइनस करोगे यू गेट योर एनपीवी. जस्ट कैलकुलेट, देन विल डिस्कस द आंसर. आउटफ्लो का आ गया आंसर? चलो करो, वी डिस्कस टुगेदर. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स. ठीक है, दोनों का प्रॉपर आंसर एनपीवी निकाल के मुझे आंसर दो. मम्मा मम्मा जैसे
Done? Yes, ma'am. Okay, let's discuss. ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है, आई टोल्ड यू, अब आपको दो आउटफ्लोज दिए हुए हैं तो पहले आपको उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, राइट? 0 and 1 year आपने बनाया प्रेजेंट वैल्यू का टेबल, आउटफ्लो लिखा 1,50,000 and 30, राइट? And then you calculated your present value at 10% discounted factor. जब जीरो का है तो जीरो का वन ही रहेगा, क्योंकि नीचे वन प्लस जब आपने एंड किया तो वहां पर आपका जीरो आ गया, तो दैट इज योर वन, ठीक है? फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड वैल्यू निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.909, राइट? इसका आपने जब मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये आई, व्हेन यू एडेड इट, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू फॉर योर आउटफ्लोस, ठीक है? इसी वे में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट योर इनफ्लोस। इनफ्लोस की क्या वैल्यू होगी हम इसी वे में निकालेंगे। अब जब हम इनफ्लोस देखें, यू विल मेक अ टेबल अगेन, उसमें आपने इनफ्लोस का बनाया 0 to 1 year का, ठीक है? 1 2 3 4 5 एंड यू कैलकुलेटेड योर सैल्वेज वैल्यू का 5 अगेन यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है? इनफ्लोज लिखे आपने 20 30 जितना जो जो दिए थे लिखे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी, राइट? और आपने मल्टीप्लाई करके यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड यू रिटन डाउन योर टोटल, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब एनपीवी से आपने सब्ट्रैक्ट किया जो आपकी अभी आई, और आपने माइनस करा जो आपने कैलकुलेट करी थी आउटफ्लो की, राइट? आंसर इज 8790, राइट? यही आया आंसर। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, आप उसको भी करो एक बारी। कोई बात नहीं।
इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट IRR. IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं. आपको अपनी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है, राइट? स्टार्ट डूइंग इट. Done?
Okay, the time is already up. Please note down the question. We can discuss the answer in the next class, right? You can go. Thank you.